Next question in rational numbers. Here we have to match the followings. Here, this column is a division of rational numbers. Here are the values of that. So we'll solve this. This will be 2/5. Division है, multiplication हो जाएगा और ये reciprocal हो जाएगा. This is cancelled. So it will be 1. Here 1 is this. So this will be third. Next is -2/5 into reciprocal of 1 is 1/1. Means -2/5 is multiplied to 1. It will not change. So that is this fifth. Next is 1/10 into reciprocal of the next fraction 7/5. So it will be 7/50. That is this fourth. So we'll write the answers also. This is 1, this is -2/5, this is 7/50. Next one, 4/9 into reciprocal of the next fraction 9/-4. So ये हो जाएगा cancel, ये हो जाएगा cancel. So it will be, this is minus sign अगर ऊपर ले लिए, so 1 into -1, that is this. -1, and the last one remaining is 5/40. कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा है. That is this 5/14. Next one is convert the following rational numbers into decimal by changing the denominators as power of 10. 10 power of 10 हमें पता है कि 10, 100, 1000 like this. हमको डिनोमिनेटर को 10 या पावर ऑफ 10 करना है और देन वी हैव टू कन्वर्ट द rational number to decimals. So 4/5 we will have to multiply 5 by 2 to get 10. So equivalent rational number हम बना रहे हैं यहाँ पे 8/10 मिलेगा. That will be decimal 0.8. यहाँ पर हमने देखा है एक 0 है. Decimal here actually is here. So decimal will be shifted one place to the left क्योंकि यहाँ पे एक 0. So it will be shifted from here to here. It becomes 0.8. अब यहाँ पर 200 है. 200 को हम आइदर मल्टीप्लाई करके बड़े किसी 10 की पावर पे ले जाएंगे या हम देख सकते हैं उसको डिवाइड करके. अगर डिवाइड करके भी वो आ सकता है तो वो डिवाइड भी कर सकते हैं क्योंकि हमने देखा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हम लोग मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हैं, डिवाइड करके भी. Now here both can be divided by 2. So if we divide this by 2, both numerator and denominator divided by 2, so -4/100 आ जाएगा. Now we got the power as power of 10 in the denominator, that is 100. अब यहां पर भी सेम चीज, डेसिमल यहां है जैसे यहां पे देखा था. अब यहां पे 2 zeros है. Here it is only 1 0, so 1 place shift हुई. यहाँ पे 2 zeros है तो 2 places लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे. यहाँ पर एक 4 डिजिट है ये और एक आ जाएगा 0, so it will be -0.04. एक डिजिट ये हो गया और दूसरा डिजिट जो नहीं है वो हो जाएगा 0.04. नेक्स्ट क्वेश्चन, convert the rational number 13/8 into decimal form. Now 13/8, we have seen two methods. One where we convert the denominator to power of 10. The other directly dividing the numerator by the denominator. Here, if it is possible, we can convert the denominator to 10 or power of 10. We'll do that. And we have seen that if the denominator is having multiple of 2 or 5, only 2 or 5, then that can be converted to 10 or power of 10. अगर 2 या 5 के अलावा कोई भी फैक्टर है उसमें डिनोमिनेटर में, so वो नहीं कन्वर्ट हो सकता. Now this is 8. 8 is multiple of 2, so we can convert it. यहाँ पर हम 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है ये कैसे देखेंगे. 8 is
2 into 2 into 2. So if you multiply this 2 by 5, this 2 by 5 and this 2 by 5 into 2 is 10, 5 into 2 is 10, 5 into 2 is 10. So we have to multiply it by 5 into 5 into 5, that is 125. So we multiply both numerator and denominator by 125. So denominator हो जाएगा 125 into 8, that is 1000, and 125 into 13, वन 1625. यहां पर 1625 को डेसिमल में लिखने के लिए वी हैव 3 zeros इन द डिनोमिनेटर. अभी इसमें डेसिमल है, यहां पर 3 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट होगा. सो इट विल बी हियर 1 2 and 3. सो इट विल बिकम 1.625. डायरेक्ट डिवीजन करके भी हो सकता है, यहां पर कुछ दिया नहीं है तो यू कैन डू डायरेक्टली बाय डिवाइडिंग 13 को 8 से डिवाइड करके भी ला सकते हैं. नाउ कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फॉर्म. 0 upon 100. 0 upon 100 means 0 itself. So we can write it 0 or 0.0. It is the same thing. Next है 62 upon 99. जैसे मैंने यहाँ बताया कि फैक्टर्स जो डिनोमिनेटर के 2 या 5 होना चाहिए, उसके अलावा अगर फैक्टर है तो वो 10 या पावर ऑफ 10 में नहीं हो सकता. 99 में 3 फैक्टर है, 2 और 5 नहीं. सो देयरफॉर यहाँ पर हमको एक्चुअली डिवाइड करना पड़ेगा. 62 डिवाइडेड बाय 99 करेंगे. 62 इज नॉट डिविजिबल बाय 99. सो यहाँ पर पहला आ जाएगा 0. 0 जा. व्हेन वी टेक डेसिमल, 0 के बाद हमने जब डेसिमल लिया तो एक्चुअली हमने क्या किया, ये जो डेसिमल है ये यहाँ पे लिया है. अब यहाँ के जो जीरोस है ये नीचे लेते जाएंगे हम. सो इट विल बी 620. 99 डिवाइडेड 99 का 6th मल्टीपल 6 is 594. So here we get 6 2 0. Next 0 नीचे ले लेंगे. So 2s are 99 into 2 198. We get here 2, then 6. The next 0 will be taken down. Again 620 आया है. Again we have to take 6, so it will be 594. So we get 26. Again next 0 नीचे लेंगे, so it will be 260. यानी यहाँ पे 62 रिपीट होने वाला है. 62 is repeated, so it will be 0.62 recurring. 6 और 2 दोनों रिपीट हो रहे हैं, इसके लिए 62 दोनों पर बार आएगा. अगर सिर्फ एक डिजिट रिपीट होने वाला है तो उसी डिजिट पे बार आएगा. जैसे अगर सिर्फ 2 रिपीट हो रहा है तो सिर्फ 2 पर बार देना है. सो 62/99 ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, रिकरिंग होने वाला है. 62 रिपीट होने वाला है. नेक्स्ट है -5/6. नाउ 6 अगेन 6 क्या है, 2 into 3 है. हमने वो बात की थी कि सिर्फ अगर 2 या 5 है तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं डिनोमिनेटर को 10 या पावर ऑफ 10 में, बट यहां पर नहीं कर सकते. सो वी डायरेक्टली डिवाइड दिस 5/6. माइनस साइन बाद में दे सकते हैं. 6 zeros है तो यहां पर जो 0 है डेसिमल के बाद वो हम लोग लेंगे. So this will be 5, this will come down. So 6
6 8 इज 48, नेक्स्ट नीचे आ जाएगा, सो 6 3 इज 18, नेक्स्ट 0 नीचे आ जाएगा, 20 मिलेगा हमको हर बार, 20 ही मिलने वाला है, सो दैट इज गोइंग टू बी रिकरिंग। अब जैसे यहाँ पर हमने देखा था 6 2 दोनों रिपीट हो रहे थे, यहाँ सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है, सो इट विल बी 0.833 रिकरिंग होने वाला है, सो वी कैन राइट लाइक दिस, और 0.83 बार। सो हियर दोनों ही केस में हमने देखा यहाँ पे रिकरिंग है, दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, यहाँ 62 रिपीट हो रहा है, यहाँ 3 रिपीट हो रहा है। In this question, we have to see whether these rational numbers when converted to decimals will be terminating or non-terminating, but we don't have to actually convert them. So, उसके लिए हमने देखा था कि जब denominator जो है ये अगर सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर्स है उसके, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 के अलावा उसमें कोई भी दूसरे फैक्टर्स है, सो इट विल नॉट बी हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट विल बी अ नॉन टर्मिनेटिंग, यानी वो रिपीट होते रहेगा, कंटिन्यूएशन में चलेगा। सो नाउ 2 और 5 फैक्टर होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 5 है डिनोमिनेटर में, सो देयरफॉर दिस इज अ टर्मिनेटिंग decimal because denominator is 5. 200 के फैक्टर्स है 2 और 5, इसमें 2 और 5 के अलावा दूसरे कोई भी फैक्टर्स नहीं आने वाले। इफ यू वांट टू चेक, फैक्टर्स निकाल के देख सकते हैं 200 के, सिर्फ 2 और 5 उसके फैक्टर्स हैं, देयरफॉर दिस इज आल्सो अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। 99 ये 3 के फैक्टर्स इसमें आ जाएंगे, therefore this is a non-terminating six is also having factor 2 and 3 as well। इसके फैक्टर्स अगर हम देखें 2 के 6 के 2 into 3, 6 के फैक्टर्स में 2 और 3 दोनों आ रहा है, 3 है, therefore this is also going to be a non-terminating decimal।